Hello everyone. Okay, welcome to our new lecture. Okay, in the last lecture we have dealt with the architecture of 8085. I hope you all must have understood that how this microprocessor 8085 microprocessor works. As I told you that in the last lecture also I told you microprocessor starts from PC, that is program counter. Okay, so now today I will deal with all these what are these registers are about. Okay, suppose now how many registers are there, so I will tell you about all these registers. First of all, let's come to register set. Now, a microprocessor actually have this complete register set. You can check it has an accumulator A. Then there are flag registers, which are total number of flags are 5, and they both are of 8-bit. If 8 is written here, that means they all are of 8-bit. So flag register is also of 8-bit, out of which 5 flags are there. That means we are just using 5 bits. Okay, then there are B register and C registers, D registers and E register, H register and H registers. Okay, B, C, D, E, H, L, I told you these all are actually your general purpose registers, which in short is called GPR. Okay, so remember this thing. Then comes stack pointer and program counters. These are your special purpose registers, so they are known as SPR. So remember these things. This will be fruitful for you. This will be useful for you. And yesterday I told you that there are data bus and there is an address bus. Address bus is of 16 lines and it is unidirectional in nature. You can check from here. Whereas data bus is of 8-bit, so it consists of 8 lines and it is bidirectional in nature. So remember this thing. This is very important. Okay. Now let's start with the first of all, what are general purpose registers? As I told you yesterday also that B, C, D, E, H, L, they are general purpose registers. But remember one thing, if you have to use these registers for 16-bit processing, okay, then you can use this. How you can use this? See, this one you can check from here. This is 8-bit, this is 8-bit. Just combine B and C and this will become a 16-bit register. Okay, so this is how we can use the pairing. So after pairing, this will become a 16-bit register and we can use it for 16-bit processing. So similarly, we can make DE also as you can say pairing, and HL. So there will be a 3 pairs. 3 register pairs will be there. The first one will be BC, DE, and HL. And remember one thing, the most important thing is that you cannot make the pairs by your own wish. Okay, these are defined pairs. That means B and C will only pair, B and D will never pair up. Okay, so remember this thing, you can only pair up B with C, D with E, and H with L. This is the most important thing. Keep in mind, keep in your mind. So this is the first thing. Okay, then we know that B and C, B, C, D, and E, these 4 registers work for general purpose. General purpose means for anything you can use it. You can use it for, you can see, for data copy, for doing any kind of instructions work like processing. When processing is going on, you can use them to store the data. Maybe the addition result you can store them, maybe the subtraction result, or any kind of logical operation is performed, then you can save the result there also. You can save the data which is required for addition purpose. Okay, so these are the general purpose works which can be done with the help of B, C, and D, E pairs. Okay, or individual as B register, C register, D, and E registers. Now the most important thing that you have to keep in your mind, that there is one more pair which is called HL register. This pair is normally used to store the address. Yesterday we talked a lot about address. What is address? What is address? What is memory locations? Okay, so actually HL register pair, that means whatever data that you keep in the HL register pair, कुछ भी आप सेव कर रहे हो वो एड्रेस के फॉर्म में होगा, क्योंकि रजिस्टर पेयर है, 16 बिट का है, और हमें ये पता है कि जो भी हमारा मेमोरी लोकेशन होता है, यानी कि जो एड्रेस होता है वो 16 बिट का ही होता है. सो रिमेंबर दिस थिंग, दैट ये 16 बिट का कोई भी मेमोरी लोकेशन अगर बाई चांस आपको सेव करना है तो उसके लिए हम HL रजिस्टर पेयर ही यूज करते हैं. Keep this thing in your mind. Okay, so you can say in the other words, HL register pair plays the role of memory address register. यानी कि HL register pair specifically हम use करते हैं
एड्रेस को स्टोर करने के लिए। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट इज एक्यूमुलेटर एंड पॉइंटर्स। सी एक्यूमुलेटर, ये भी मैंने आपको बताया था, ये आपका एक 8 बिट का रजिस्टर है। इसका जो मेन वर्किंग होती है, यू कैन से द मेन, जो आप उसकी डेफिनेशन डिफाइन करोगे वो इस तरह से करोगे कि इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड फॉर एएलयू, यानी कि ये आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिक जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उसमें एक्यूमुलेटर आपका यूज होता है, पहली चीज, ठीक है ना। अच्छा, एक्यूमुलेटर हमेशा याद रखना, कल भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सपोज आपके पास कोई इंस्ट्रक्शंस है, अभी मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ाए नहीं है लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक इंस्ट्रक्शन ये होता है माइक्रो प्रोसेसर में ऐड बी, ठीक है, तो ऐड बी का मतलब क्या हुआ कि बी में, बी रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू गिवन है उसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ, अगर सिर्फ एक रजिस्टर गिवन है तो वो बाय डिफॉल्ट है कि आप उसको एक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ आप ऐड करोगे। डन दिस थिंग, सो रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नाउ एक्यूमुलेटर के साथ बी में अगर आपका 5 है, एक्यूमुलेटर में मैंने आपको कल बताया था कि अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे ऐड बी का मतलब है कि 5 में आपको 3 ऐड करना है। सो ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट डाटा विल बी देयर इन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर इटसेल्फ, बट रिमेंबर वन मोर थिंग कि जब आप 5 + 3 को ऐड कर देते हो द रिजल्ट विल बी 8 हियर। ओके, अब ये 8 जो रिजल्ट आपका है ये वापस फिर से जा करके एक्यूमुलेटर रजिस्टर में सेव हो जाएगा। सो नाउ इंस्टेड ऑफ 3, यानी अभी तक जो एक्यूमुलेटर के अंदर जो डाटा सेव था वो 3 था, अब वो हट जाएगा, वो राइट इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा 8। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये आप चीज आपको बहुत ज्यादा माइंड में रखनी है, हर बार जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा एक्यूमुलेटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, सो दिस इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर। देन कम्स प्रोग्राम काउंटर, इसको आप फिर से रिकॉल करो, पीसी इज प्रोग्राम काउंटर, और ये मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहला जहां से आपके इंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, यानी प्रोग्रामिंग जो आपने स्टार्ट करी, तो फर्स्ट एड्रेस जो होता है वो प्रोग्राम काउंटर में होता है और ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाता है। दैट मीन्स कल भी बताया था, जैसे ही आप पहला इंस्ट्रक्शन फेच करोगे, ठीक है ना, वैसे ही ऑटोमेटिकली ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि +1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और +1 होते ही जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि अगर पहला मेमोरी लोकेशन आपकी 2000 थी, तो 2000 से डेटा फेच करते ही क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा इसमें, और नेक्स्ट जो एड्रेस है दैट इज 2001, वो यहाँ पर आपका क्या होगा, सेव हो जाएगा आकर के, पहला फेच होते ही ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा। उसी तरह से स्टैक पॉइंटर मैंने आपको बताया था कि मेमोरी लोकेशन में एक एरिया होता है जिसको हम स्टैक मेमोरी कहते हैं, ठीक है, और स्टैक मेमोरी भी आपकी क्या होंगे, कई मेमोरी लोकेशंस होंगे, उसमें कई एड्रेसेस डिफाइंड होंगे। सपोज कि यहाँ का आपका 3000 मेमोरी लोकेशन है, सो रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पर दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द स्टैक टॉप, ये जो टॉप का एड्रेस यहाँ पर है, क्योंकि ये आपका किस पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरह से, और जो चीज आपका लास्ट में इन हुई है वो फर्स्ट आउट यहाँ से हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लास्ट डेटा आपका स्टोर हुआ होगा, यानी कि जो लेटेस्ट डेटा आपका होगा स्टोर हुआ है, दैट विल बी सेव्ड हियर एंड द एड्रेस ऑफ दैट विल गो टू द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, दो चीजें हैं, प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर, ये डाटा को स्टोर नहीं करते हैं, ये एड्रेस, यानी कि जिस लोकेशन पे डाटा आपका सेव है वहां का एड्रेस ये स्टोर करते हैं, जबकि बाकी रजिस्टर्स जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं वो आपका क्या करते हैं, एक्सेप्ट एचएल, बाकी सब जो डाटा रिक्वायर्ड है उस पे वर्क करते रहते हैं, यानी कि वो वहां पे स्टोर होता रहता है, रिट्रीव होता रहता है, स्टोर होता रहता है, रिट्रीव होता रहता है। सो दिस इज व्हाट एक्यूमुलेटर एंड पॉइंटर्स आर। नेक्स्ट कम्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मैंने कल आपको बताया था कि जब प्रोग्राम काउंटर से हम एड्रेस को पिक कर लेते हैं तो उस एड्रेस को मेमोरी लोकेशन पे जाके वहां से हम क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन गिवन होता है उसको लेकर आते हैं और उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे डिकोडर लगा हुआ था, आप चेक करना, मैं आपको क्या फिर से एक बार शो कर देती हूँ, यू कैन चेक फ्रॉम हियर, ये रहा, दिस इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड दिस इज इंस्ट्रक्शन डिकोडर। तो मैंने आपको कल बताया था कि पीसी से रजिस्टर एड्रेस की वैल्यू को उठा करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हम इंस्ट्रक्शन को लाकर
छोड़ देते हैं और फिर वहां पे हम डिकोड करते हैं, ठीक है। सो दिस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड द डिकोडर्स आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का ये पार्ट होता है। दिस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज अ टेम्परेरी स्टोरेज, ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है जहां पे आपका करंट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का सेव होता है। The decoder decodes the instructions and establishes the sequence of events to follow. Okay, decoder क्या करता है, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है एंड फिर आप फाइंड आउट करते हो कि एक्चुअली हमें वर्क क्या करना है। दैट मीन्स द प्रोसेसर फाइंड्स आउट दैट व्हाट एक्चुअली दे हैव टू फॉलो। तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर का काम होता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फ्लैग रजिस्टर्स। फ्लैग रजिस्टर्स मैंने आपको बताया था, दिस इज ऑल्सो एन 8-bit रजिस्टर, बट वी हैव ओनली 5 फ्लैग्स इन 8085। 8085 के अंदर जो 5 फ्लैग्स होते हैं, दे आर जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ठीक है। तो ये आपके 5 flags हो गए. You have to keep in mind these things. So the ALU includes 5 flip-flops. ये आपके flip-flops होते हैं which can be set or reset after the operation according to data conditions of the result. That means जब ALU अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है, उसके बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर में सेव कर देते हैं या किसी और रजिस्टर में सेव कर देते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी था, जहां पे डिफाइंड होता है वहां पे रिजल्ट आपका सेव हो जाता है। लेकिन इस रिजल्ट के बेसिस पर ये जितने भी फ्लैग्स आपके यहाँ पे डिफाइंड हैं, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, सेट और रीसेट हो जाते हैं, आपके रिजल्ट की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं सीधे सीधे। तो दीज आर द 5 फ्लिप फ्लॉप्स which actually set and reset. अच्छा, अब ये सेट और रीसेट कैसे होते हैं, लेट्स चेक। सबसे पहले कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग का मतलब ये होता है कि इफ द रिजल्ट कंटेन्स any carry, for example I am telling you, suppose this is an 8-bit register, sorry I made a bit bad, extremely sorry for that. ओके, सपोज ये अगर मैं बोलती हूँ कि 8-bit है, तो दिस इज D0, ओके, दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3, दिस इज D4। D4 का मतलब एवरी बिट की हम बात कर रहे हैं, हर डाटा का एक एक बिट जो जहां पर आएगा। तो अगर ये आपका D0 है, तो उसी तरह से D1, D2, D3, D4, देन D5, ओके, दिस इज D6 एंड दिस इज D7। तो अगर इस तरह से आपके 8 बिट्स हैं, ठीक है, तो कैरी फ्लैग का मतलब ये हुआ कि सपोज आपका रिजल्ट तो इस 8 बिट्स का रिजल्ट आ गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ कैरी बचा, ठीक है। अगर आपने कोई भी रिजल्ट ऐसा करा जो कि 8 बिट से ज्यादा का है और लास्ट में आपका सपोज 1-0 आया, तो 0 तो आप यहाँ सेव कर दोगे, बट एक 1 बचा जो कि कैरी होके जाना चाहिए था, तो उस केस में कैरी फ्लैग आपका हाई हो जाएगा। हाई का मतलब है नाउ इट विल सेट इटसेल्फ, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, दैट मींस द एक्यूमुलेटर आईडी इफ लार्जर देन 8 बिट्स, अगर 8 बिट से ज्यादा का रिजल्ट आता है, तो ये जो आपका कैरी आ रहा है ये यहाँ चला जाएगा, विच इज व्हाट, विच इज कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग क्या है, वो एक तरह का इंडिकेशन देगा, ठीक है, दैट मींस इट इज सेट। तो वो इंडिकेशन जो हो रहा है वो ये शो कर रहा है कि देयर इज अ कैरी। इफ इट इज सेट मींस इट इज गिविंग एन इंडिकेशन। सो द फ्लिप फ्लॉप यूजेस टू इंडिकेट द कैरी, ठीक है। हाँ, ये चीज ध्यान रखना, ये एक इंडिकेशन टाइप के होते हैं, आपको इंडिकेट कर देंगे कि कैरी फ्लैग हाई है, मतलब कि एक आपका सपोज एक एलईडी बल्ब जैसे इंडिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर एलईडी ऑन हो गया तो इसका मतलब है कि वो चीज वर्क कर रही है। सिमिलरली इफ अगर कैरी फ्लैग का एलईडी आपका ऑन हो गया, तो दैट मीन्स कि कैरी फ्लैग वहां पे एक कैरी हमें मिला है, ठीक है। सो दिस विल बी सेट टू 1। कोई कैरी नहीं है तो यहाँ का रिजल्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0। अभी 1 है, अदरवाइज 0 है, ठीक है। तो 0 का मतलब रीसेट ही रहेगा, कोई इंडिकेशंस नहीं आएंगे। Now next is zero flag. Zero flag says that कि if all the 8 bits, ये जितने भी आपके यहाँ पे 8 bits हैं, अगर इनका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट किसी का 0 आता है, तो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। अगेन सेट होने का मतलब है कि एक इंडिकेशन आपको मिल जाएगा दैट द रिजल्ट इज 0। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। और ये बहुत नॉर्मल सी चीज है कि जब आप बाइनरी में करते हैं एडिशंस, तो समटाइम्स द रिजल्ट बिकम्स 0।
देन कम्स ऑक्सिलरी कैरी. नाउ ऑक्सिलरी कैरी को हम एक हाफ कैरी भी बोलते हैं. हाफ कैरी का मतलब ये होता है, वी ऑल नो दैट देयर आर 8 बिट्स विच मेक अ बाइट. ठीक है ना. तो अभी हम 1 बाइट की बात कर रहे थे कैरी फ्लैग में. कैरी फ्लैग में क्या हो रहा था, 8 बिट्स के बाद अगर कोई कैरी आ रहा था तो वो कैरी फ्लैग को हाई कर रहा था. कैरी फ्लैग उसमें क्या हो रहा था, सेट हो रहा था. लेकिन अब हम क्या करते हैं, इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग बाइट वी विल यूज निबल्स. ठीक है. अब सपोज ये मैंने यहां से इसको D0 से D3, ये 4 बिट्स हो गए, यहाँ पे ये 4 बिट हो गया और 4 बिट्स यहाँ पर हो गए. ठीक है ना. तो इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ ऑक्सिलरी कैरी, यानी कि जो हम हाफ कैरी बोल रहे हैं, उस केस में अगर D3 से D4 में आप कोई कैरी लेके जा रहे हो तो वहां पर आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होगा, सेट हो जाएगा. यानी कि यहाँ पे ये डिफाइन करेगा कि फर्स्ट निबल के MSB से, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से सेकेंड निबल के लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर कोई कैरी गया है. सो यहाँ पे निबल्स में बात करेंगे, कैरी में हम बाइट्स में बात कर रहे थे. 1 बाइट, यहाँ पे 2 निबल्स हो जाएंगे. तो फर्स्ट निबल से सेकंड निबल पे अगर कोई जा रहा है, सो रिमेंबर दिस थिंग, ये चीज आप ध्यान रखना. ये हाफ कैरी है, क्यों, क्योंकि 8 बिट्स का हाफ हमने कर दिया. तो अब अगर 4 बिट का लास्ट जो था वो इस यहाँ पे नेक्स्ट बिट में आ जाता है, यानी इसके जो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट निबल है, सेकंड निबल के फर्स्ट बिट में आप कह लो. ठीक है ना. उसमें अगर आता है तो ये आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को हाई कर देगा. रिमेंबर दिस थिंग. एंड वन मोर थिंग, एज अ नोट राइट इट डाउन कि कैरी फ्लैग कैन वर्क ऑल्सो फॉर सब्ट्रैक्शन, और सेम प्रोसेस अगर करता है इफ देयर इज अ बोरो. ठीक है ना. अगर आप बोरो कर रहे हो उधर से इधर साइड में, तो भी आपका ये कैरी फ्लैग आपका हाई रहता है. ओके. सो आई होप यू मस्ट हैव गॉट दिस, व्हाट इज ऑक्सिलरी कैरी. नहीं कुछ याद रहे तो ये याद रखना, इट इज कॉल्ड हाफ कैरी ऑल्सो. Okay, next is parity flags. What is parity flag? Parity flag के लिए एक चीज याद रखना, as I told you in my last slide, जैसे ये बताया था मैंने आपको, ये आपके ये सारे के सारे बिट्स हैं. अब पैरिटी में क्या है, सपोज 8 बिट का कोई रिजल्ट आपका आया, 1 0 1 1 0 1 0 0. कितने बिट्स हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है ना, 8 बिट्स हो गए. नाउ जस्ट चेक हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर, 1 2 3 एंड 4. तो अभी मैंने कुछ ऐसे ही ऑटोमेटिकली ले लिया और हमने ये चेक कर लिया कि इसमें जो नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन है. हमें ये चेक करना है कि इवन है या ऑड है. ठीक है. सो रिमेंबर, इफ यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ वंस in the 8-bit result, parity flag is reset. अब चूंकि यहाँ पे even number of ones आए हैं, तो that shows that parity flag will be 1, that means it will be set. Clear this thing? तो किसी में भी अगर even number of ones आते हैं तो parity flag आपका set हो जाएगा. odd आता है तो वो reset रहेगा, 0 पे ही रहेगा. तो now parity flag will indicate that the result contains even number of ones. ठीक है. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. देन कम साइन फ्लैग. साइन फ्लैग में आपको हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है दैट इज B7. ठीक है. B7 यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे D7 लिया था आप. ठीक है. तो ये जो बिट आपकी है, अगर यहाँ पर 1 है, इफ you get the result 1 in the MSB, then it indicates that the number is negative number. Okay. और तब वहां पे साइन फ्लैग हाई हो जाता है. साइन फ्लैग हाई मतलब साइन फ्लैग इज इंडिकेटिंग दैट द रिजल्ट यू गॉट इज एक्चुअली नेगेटिव रिजल्ट. तो रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव टू चेक द B7 यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को आपको चेक करना है, जो लास्ट बिट आपकी होगी. ठीक है. और अगर वहां पे 1 है तो वो नेगेटिव नंबर है, रिजल्ट इज नेगेटिव. और अगर वहां पे 0 होता है तो दैट मीन्स द रिजल्ट यू गॉट इज इन पॉजिटिव. ठीक है. पॉजिटिव नंबर में रिजल्ट आया है. तो ये आपके सारे के सारे जो हो गए, क्या हो गए, सारे के सारे फ्लैग्स कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे. बस एक फॉर फर्दर पर्पस, यानी कि आगे जब आप पढ़ोगे या व्हेन वी विल कम टू यूनिट 3 एंड यूनिट 4, तब आपको वहां पे एक वर्ड मिलेगा दैट इज कॉल्ड PSW. सो कीप दैट थिंग इन माइंड ओनली. अभी से बता रही हूँ दैट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैग रजिस्टर्स एंड एक्यूमुलेटर इज कॉल्ड प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, PSW. ये आपको बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस में ये वर्ड आपको मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैग रजिस्टर्स एंड एक्यूमुलेटर. Okay. Now I will show you the diagram of flag. See, these are the bits where every flag is given. So S
D7 में साइन फ्लैग है ऑफ कोर्स, क्योंकि D7 हम चेक कर रहे हैं. यू कैन चेक फ्रॉम हेयर. ऑक्सिलरी कैरी को D4 में दिया है क्योंकि D3 से D4 आपको लर्न करने में थोड़ा सा इजी हो जाए, इसलिए इन्होंने इस तरह से करा है कि D3 से जब D4 जाएगा so your auxiliary carry will get high. ठीक है. और बाकी Z P C Y ये सिर्फ एक लर्न करने का तरीका है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ. बाकी आपको लर्न करना है तो SZ ACPC, नथिंग एल्स. ठीक है, आपको इस तरह से इसको याद रखना है, SZ ACPC. फर्स्ट दो आप साथ में लिखोगे एंड देन एवरी वर्ड यू विल राइट आफ्टर अ गैप. ये जो है आपके, इनको हम अनडिफाइंड नंबर्स बोलते हैं, यानी कि 3 बिट्स आपके अनडिफाइंड हैं, और इसको आप ये कह सकते हो कि छोड़ दिया था उस टाइम पर कि फ्यूचर पर्पस के लिए हम यूज करेंगे. मे बी पॉसिबल कि हमें किसी और फ्लैग की जरूरत पड़े, किसी और इंडिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़े, तब हम इस 8 बिट में से कोई भी एक बिट हम यूज कर सकते थे. ओके, सो दीज आर अनडिफाइंड और इसको हमने फ्यूचर पर्पस के लिए छोड़ दिया था. रिमेंबर, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न इट वेरी वेल. Okay, now we will deal in the next lecture. Now I just rest it here. Thank you very much. Take care. Bye bye.